Hello students, this is Neeraj Paul from LPM Public School Gola Bazar, Gorakhpur. Once again, I welcome you to online classes. As you all know students, schools are closed due to DM order, but we have to learn daily. We have to learn continuously. So students, today I am going to make this lecture video of chapter 1. Then this is a revisional video for you. You can see here I have mentioned here some questions, and today I will explain questions, answers and related topic. Okay, so you can see here question number first is, which of the following is not a type of row? Options are P-ROM, EE-ROM and EP-ROM. Okay, you have to tell which option is the right answer. Okay students, so first of all we will see here ROM. Okay, first of all we have to know what is the full form of ROM. Clear? Look here students, R is stand for read, and O is stand for only, and M is stand for memory. It means ROM is stand for read only memory. Clear? ROM is stand for read only memory. And students, there are three type of ROM. There are three type of ROM. First is P-ROM, second is EP-ROM, and third is EE-ROM. Okay? There are three types of ROM. ROM कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स के. ठीक है. फर्स्ट जो होता है आपका P-ROM, सेकेंड इज EP-ROM एंड थर्ड इज EE-ROM. देखिए आप इसको कैसे लर्न करेंगे. लर्न करने के लिए सबसे पहले देखिए जो है P-ROM, तो सबको पता है कि ये जो है रोम का एक टाइप है P-ROM. सेकेंड टाइप में आपको E ऐड कर देना है. देखिए यहाँ पे E आपको ऐड कर देना है. EP-ROM ये आपका सेकेंड टाइप हो जाएगा. थर्ड टाइप में आपको EE ऐड कर देना है, EE-ROM. ठीक है. तो ये आपके थ्री टाइप्स के रोम आप इस तरह से आसानी से लर्न कर सकते हैं. सिंपल सा आपको ये याद करना है P-ROM. ठीक है. देयर आर थ्री टाइप ऑफ रोम. फर्स्ट इज P-ROM, सेकेंड में आप जो है आगे E ऐड कर देंगे EP-ROM, एंड थर्ड में आप जो है EE ऐड कर देंगे EE-ROM. क्लियर एवरीवन? अब यहाँ देखिए आंसर में ऑप्शंस दिया हुआ है. फर्स्ट इज P-ROM, दिस इज अ टाइप ऑफ रोम. सेकेंड दिया हुआ है EE-ROM, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम. एंड थर्ड इज EP-ROM, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रोम. It means option number A and option number C is a type of ROM, but option number B is not a type of ROM. It means according to the question, option number B is the right answer. Clear everyone? Now come to the question number 2. Question number 2 is, it is located inside the CPU cabinet. It is located inside the CPU cabinet. Options are flash drive, option number B is Blu-ray disc, and option number C is hard disk. So first of all I will explain options. Okay, look here students, this is flash drive. Do you know what is the other name of flash drive? Flash drive is also known as pen drive. Flash drive is also known as pen drive. Clear? मतलब फ्लैश ड्राइव का जो दूसरा नाम होता है वो पेन ड्राइव होता है. एंड
flash drive or pen drive is a storage device. Option number B, Blu-ray disc. Blu-ray disc is also a storage device. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था स्टोरेज डिवाइस, कुछ आपको पढ़ाया था मैंने सीडी, ओके, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू-रे डिस्क, ओके। ये भी आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं। स्टोरेज डिवाइस में मैंने आप लोगों को बताया था हार्ड डिस्क के बारे में, पेन ड्राइव के बारे में, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू-रे डिस्क के बारे में, ठीक है। ये सब क्या है, हमारी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। क्लियर? अ सीडी कैन स्टोर अप टू 700 MB डाटा एंड अ डीवीडी कैन स्टोर 4.7 GB डाटा and a Blu-ray disc can store 25 GB data on each side. As you all know students, a CD can store 700 MB data and a DVD can store 4.7 GB data and a Blu-ray disc can store 25 GB data on each side. सीडी आप देखते होंगे, सीडी पहले देखे होंगे, मैंने क्लास में दिखाया भी था आप लोगों को। सीडी जो होता है वो वन साइड में आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, ओके। लेट मी ब्रिंग अ सीडी, ओके स्टूडेंट्स, जस्ट वेट, ओके स्टूडेंट्स, लुक हियर, दिस इज अ डीवीडी, ओके। In front side you can store data and a DVD can store up 4.7 GB data. Back side you can't store data here, okay, but in Blu-ray disc you can store both side data. On each side you can store 25 GB data. Clear? Once again, look at the board. A CD can store 700 MB data and a DVD can store 4.7 GB data. This is a DVD disc. DVD is stand for digital versatile disc, and CD is stand for compact disc. CD is stand for compact disc and DVD is stand for digital versatile disc, and Blu-ray disc, it is the full form, okay. It can store 25 GB data on each side. मतलब आप जो ब्लू-रे डिस्क है उसके दोनों साइड में आप डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं। फ्रंट साइड में आप जो है 25 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं और बैक साइड में भी आप 25 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हियर इज हार्ड डिस्क। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, hard disk is also a storage device. It is fixed inside the CPU cabinet. जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो आपके CPU कैबिनेट के अंदर फिक्स्ड होता है। ये जो आपका पेन ड्राइव है आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से ले जा सकते हैं। जितने भी आपके सीडी हैं, डीवीडीज हैं या फिर ब्लू-रे डिस्क है वो भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। बट हार्ड डिस्क जो है ये इनबिल्ट होता है आपके सीपीयू कैबिनेट के अंदर, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सीपीयू, ओके, कैबिनेट। इनसाइड दिस यू कैन सी मेनी पार्ट्स, ओके, हियर आर सम वायर्स। स्टूडेंट्स, दिस इज अ SMPS. It gives power supply to small parts like motherboard, CD drive and hard disk, and so many other parts are here. It is supplied by the SMPS, okay. Here you can see this is a hard disk, okay. ये हार्ड डिस्क जो होता है ये आपके CPU कैबिनेट के अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक है। इसको आप कैरी नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह आप इसको नहीं ले जा सकते, ये आपके CPU कैबिनेट में इनबिल्ट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? लुक, दिस इज अ हार्ड डिस्क,
इट इज ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस, इसमें हम डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एंड दिस इज अ CPU फैन, ओके, दिस इज अ कूलिंग फैन, ये हमारे सिस्टम को कूल रखता है, CPU कैबिनेट को ये क्या करता है, कूल रखता है, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी दिस इज अ मदरबोर्ड, ओके, दिस इज मदरबोर्ड, दिस इज टोटली ओके। नाउ स्टूडेंट्स come to the question, okay, question number 2, it is located inside the CPU cabinet। अभी मैंने आपको बताया जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क आपके CPU कैबिनेट के अंदर फिक्स्ड होता है, क्लियर, बट फ्लैश ड्राइव एंड ब्लू-रे डिस्क दीज आर द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द right answer, clear students? Now come to the question number 3rd, question number 3rd is 1 terabyte is equal to, question number 3rd is 1 terabyte is equal to, so students here are 3 options, option number A is 1024 KB, option number B is 1024 GB and option number C is 1024 EB। स्टूडेंट्स 1 टेराबाइट, मैं आप लोगों को क्लास में जो है टेबल राइट करवाया था, ठीक है, कंप्यूटर्स मेमोरी का। कंप्यूटर मेमोरी में देखिए स्टूडेंट्स, बीट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो बीट्स होता है 8 बीट्स मिल करके 1 बाइट बनते हैं, ठीक है, 8 बीट्स इज इक्वल टू 1 बाइट एंड 1024 kilobyte is equal to 1 MB and 1024 MB is equal to 1 GB and 1024 GB is equal to 1 terabyte. It means option number B, here you can see 1024 GB is equal to 1 terabyte। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 टेराबाइट जो होता है वो कितने के बराबर होता है। ऑप्शन में देख सकते हैं आप 1024 KB दिया है, 1024 KB मीन्स होता है 1 MB, ठीक है, एंड 1024 GB इज इक्वल टू होता है 1 TB, इट मीन्स 1 टेराबाइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर स्टूडेंट्स। एंड 1024 EB इज इक्वल टू क्या होता है, 1024 EB इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट, यानी कि 1 ZB, क्लियर। कंप्यूटर मेमोरी आपको अच्छे से लर्न करनी है बेटा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी इज बीट्स, जो बीट्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी होते हैं। 8 बीट्स मिलकर के 1 बाइट बनते हैं एंड 1024 किलोबाइट्स मिलकर के 1 MB बनते हैं, ठीक है, 1024 MB मिलकर के 1 GB बनते हैं, इसी तरह आगे 1024 GB मिलकर के 1 टेराबाइट बनते हैं, क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शंस आर रैम, रोम एंड ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ऑफ दीज। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, रैम, ऑप्शन नंबर ए इज रैम, ओके स्टूडेंट्स। रैम इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम, मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया है, रोम इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, रोम इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी and RAM is stand for random access memory and students RAM is a volatile memory and ROM is a non-volatile memory, clear। Now students, the next questions I will explain in my next video. Till then students, goodbye, have a nice day, thank you, bye bye।